Good afternoon, everyone. Yes. Good afternoon, You all Principal. hear me? Should we begin? Yes, we can start. Uh, Good afternoon, everyone. I welcome all of you to this national webinar on the topic which is very relevant in today's times, COVID-19 care and vaccination, myths versus facts. Uh, this webinar is being organized by the IQAC of the college and the NSS of the college. We thought about having such a webinar in the college for two reasons. One is that I would like to announce here that with the guidance of our principal, sir, we have started a COVID response task force in the college, and that task force has students and faculty members who try and get people in touch with verified resources for oxygen, plasma, medicines, hospital beds, and other things which people might need. We first started this initiative keeping in mind that we would like to help our own stakeholders, people from our college. But now we have widened the circle so much that people from outside the college also get in touch for information and resources. I must congratulate all our students who've been doing a wonderful job. We will be officially announcing the participants of that task force today. Secondly, with this task force and with the huge vaccination drive which is going on in our country, we thought that it would be really pertinent if we can have a session uh, with a renowned doctor like Dr. Manish, who can shed some light on why it's of utmost importance that everyone should get vaccinated, what it is, how it is going to help us to tackle the second wave or even the probable third wave which everybody is talking about of COVID-19 that might hit us this year only. So it would be really pertinent that when Dr. Manish would be talking about it. This webinar will have Dr. Manish discussing things around vaccination and COVID-19 myths, what kind of myths that float around in social media, and what exactly is the reality. Briefly, he may talk about that, and then he will be taking the questions that the participants may have around it. I would like to introduce our esteemed speaker, Dr. Manish. Dr. Manish is currently the professor in Department of Pediatrics, UCMS, and Guru Tegh Bahadur Hospital, Dilshad Garden. He's also the member of Delhi Medical Council. He's the president of UCMS Alumni. He's also the editor-in-chief of the Journal of Case Reports, and he has done his MD in pediatrics from UCMS and Guru Tegh Bahadur Hospital, Dilshad Garden, and he has been associated with these two organizations and institutions for a very long time. I welcome you with us, Professor Manish. It's a pleasure and privilege for us to have you with us today to discuss and interact with our students on this topic. Uh, it's an utmost pleasure that I would like to talk about. With utmost pleasure, I would like to talk about our principal, sir, who has initiated the COVID response task force in the college 20 days back. And it is because of him only that we have been organizing discussions, such pertinent discussions on the online platform also for the last 1 year when the lockdown was announced. Since then, we have had numerous national and international level programs.
and we have been able to sensitize our students and familiarize them with lots of issues and discourses that exist in our society that are of utmost social relevance for us. I would request our principal sir to give the welcome address before our speaker takes over. Thank you. Thank you, Dr. Kusha. At the outset, I would extend a very warm welcome to Professor Dr. Manish Naran. Actually, Dr. Saab, we are humbled by your instantly agreeing to serve our students. Not only our students, it's a huge mass of students and youngsters in whole Delhi University who has been very, very depressed, and there are a lot of queries regarding even vaccination. As you would like to know that Delhi University also a large chunk of students come from outside, even some of them are from rural backgrounds. So there are a lot of apprehensions regarding this vaccination drive as well. So that's why we thought of having something, since you have a huge expertise and you are associated with such a uh, uh, big hospital and research institution of our own university. So we said, why can't we request Professor Manish? Instantly you agreed for that. So we are grateful to you. At the same time, in my college also a lot of students and this COVID response team, they have been volunteering, though most of the in my faculties also student mass also a lot of people are suffering, I know it, and my heart goes out to them that we have lost two colleagues of ours in the teaching community, and a lot of them are fighting this disease. Some of my non-teaching staff, they are also fighting. Even it is frightening to see that some of my students, they are suffering. Even some students have lost their parents, and the suffering is not ending. So the only question, the only way we can defeat is just we have to stand in solidarity and to have the appropriate COVID behavior in our day-to-day life. And beyond that also, we have this very big shield before us, that is the vaccination. So why can't we have that vaccination? So since the government has lowered the age limit, so all my students are covered under this age group. So that is why through this medium, once again, I urge all of my students to go for a vaccination and impress upon your family members also to go for this vaccination drive. So you are the real ambassador of SLC if you can bring that change in your family and your nearby areas. For that matter, also today, Professor Manish is with us. He will also allay all your fears and apprehensions surrounding this vaccinations so that we can defeat this disease. So with this call, I won't take much time. Just I pray to God that these things should come to an end very soon, our sufferings. But for that reason, we have to stand united and you have to unitedly fight this disease. So thank you once again. Welcome you, sir. Thank you, Dr. Sir. Namaskar, Dr. Kusha. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words. I would request Dr. Manish to address our participants. Over to you, sir. सुमन जी सर को co-host बनाया हुआ है ना? I will just, yeah. Can you hear me? Yes, yes, sir. Thank you, Dr. Kusha and Dr. Ravi. I am grateful to you all and the entire fraternity of the Shyamlal College and COVID Task Force of Shyamlal College who has given me this opportunity to interact with the youngsters. I will definitely like to dispel myths and facts regarding COVID vaccination and COVID. I will just switch off my video so that my voice becomes much clearer. Okay, is that fine? Okay, sir. Okay.
Can you all see the screen? Yes, sir. Yeah. So, Dr. Kusha, Yes, sir. I visited Shamlal College almost 2 years back as an invigilator for some postgraduate entrance examination. Thing that impressed me the most in Shamlal was that we needed in the COVID vaccination also. Had we installed an oxygen generators timely, our country had installed, we would not have faced such a problem. But we learn, everyone learns with time, and now the process for oxygen installation of oxygen generator plants have started. So I hope situation improves in some time. Now, regarding the topic is COVID-19 care vaccine. Dr. Kusha, if you find any instability in the voice or not able to hear me, kindly let me know. Okay. Okay, sir, your voice is a little, it's cracking a little right now. Oh, I have switched on the video also, switched off the video also. That's. Actually, Dr. Saab, we couldn't hear you in the beginning. You started, then the voice suddenly it broke. So Okay. if you could start again from beginning, so it will be nice. Can you hear me now? Yes, yes. I was just telling that I visited Shamlal College almost 2 years back as an invigilator for some postgraduate examination. One thing that impressed me most in the Shamlal College was the solar panels which you have installed. So if this foresightedness were seen by our political system and we have installed the oxygen generator beforehand, we would not have faced such a problem. Now the process for the installation of oxygen generator plants has started, and hopefully we will soon become self-sufficient in oxygen also. So that is the foresightedness that we need. Now, regarding the topic is COVID-19 vaccine care and vaccine. Yeah, it's breaking a lot actually. Animals were affected. Not audible even now. Actually, Dr. must be in the hospital now, so that's. I think he will join again. He just exited. Okay, okay. So he might join from a different system now. Yes. Till he joins, I would like to request all the participants, if they have any questions, please put them in the chat room. We have our students who would be noting those questions down and then asking to Professor Manish after he finishes his talk. So please write your questions in the chat box. Hello. Yes, sir. Am I audible now? Yes, yes, sir. You're audible now. Yeah. So I will just share the screen. Hello. Yes, sir. We can see the screen and you're audible as well. Just a minute. I'm just. Hello. Yes, sir. You're audible. Yeah. We all know that this COVID infection, this started as a zoonotic infection from Wuhan, China,
Subsequently, it spread to the wild animals, and then it involved the human transmission. But now what we are seeing is human to human transmission. When we come in contact with anybody infected with COVID, and then we encounter the infection. Now it's clear, Tusha? Hello? Yes, doctor. Yes, Yes. Dr. Manish. Ah. So natural host initially were the bats or animals, subsequently, but now it is human to human transmission is progressing. And now because of this human to human transmission, we need to follow the COVID appropriate behavior. So whenever we encounter infection, what is the time when we are most infectious? Let me explain how my lecture will progress. Initially, I will talk about the COVID-19. What will be the symptoms? What would be the manifestations? What are the testing strategies? When to go to hospital, when to get treated in hospital. Subsequently, I will come to vaccination. What are the myths? What are the commonly encountered questions that people might have in vaccination? What are the myths and facts of vaccination? And subsequently, after this 20-minute talk, I will take the questions from the audience. Is that okay? Okay, Yes, doctor. sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. So whenever we encounter infections or whenever we are exposed to an infection, initial phase is the incubation period. Incubation period is the period when we encounter the infection, but we are not symptomatic. तब हमारे पास कोई symptoms नहीं होते हैं initially जब हम exposure होता है. So that's symptoms occur start about 2 days after the infection. Subsequently, the patient becomes infectious and spreads the infection to others. This phase lasts for about 10 days and subsequently it disappears in about 17 days. So the period of infectivity is 2 days prior to the onset of symptoms till about 10 days after the onset of symptoms. And total period of infectivity is almost 2 weeks to 17 days. So what are the common symptoms that COVID exposed patients can have? You will be surprised to know that almost 30% patients who have COVID infection, they are asymptomatic. They don't have any symptoms. So it is important that why we need to follow COVID appropriate behavior and social distancing must be maintained with each and everyone. Almost 70 to 80% patients will have fever, and other common symptoms are cough, fatigue, shortness of breath. That means कि सांस लेने में मुश्किल होना, body aches, sore throat. In the first wave, we saw the common symptoms that we came to know about the symptoms is loss of taste and smell. Majority of the patients who had COVID infection, they lost taste and smell, and gradually it used to improve after the infection improved. In second wave, we have seen the common symptoms which we commonly see are redness of eyes and hearing impairment. These are the two symptoms that we have seen in second wave, that hearing impairment and redness of eyes are common symptoms that are commonly seen in the infected patients. Immunocompromised patients or HIV patients, they might, or elderly patients, they might have altered sensorium, alteration of behavior, कि उनको they might tell कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है. So these are the symptoms, but majority of the patients, they will complain with fever, cough, खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, बलगम आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, या body aches हो रहे हैं, or they will have sore throat. Another common symptom which we have seen in the second wave is the diarrhea. Patients can at times just present with diarrhea or loose motions and no other symptoms. So if you see this chart or slide, you will initially is the incubation period. Subsequently, patient becomes symptomatic when viral starts multiplicating in the body. And then pulmonary phase starts when our lungs start getting infection. This is the period when patients develop hypoxia or saturation starts falling. Subsequently, if the disease progresses, that leads to late pulmonary phase, and that leads to progressive hypoxia or requirement of oxygen. This is the time, but
this is too late for getting admitted to a hospital. Initially, early pulmonary phase is the time when we should get ideally admitted in the hospital. So incubation period, nobody knows that he is infected. Symptomatic phase, you will have fever, cough, headache, diarrhea. When you can get yourself treated at home. But when early lungs के initial phase of involvement में आपको hypoxia होने लगता है, सांस उखड़ने लगती है, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है. एंड लेट पल्मोनरी फेज जब हाइपोक्सिया आपको प्रोसीड कर रहा है. सो कोविड-19 इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. इट कैन बी इधर माइल्ड डिजीज, और इट कैन बी मॉडरेट डिजीज, और इट कैन बी सीवियर डिजीज. माइल्ड डिजीज होते हैं कि बस पेशेंट्स में सिम्टम्स हैं कि फीवर है, कफ है, सोरनेस है, रेडनेस ऑफ आईज है. इन पेशेंट्स को आप घर पे ट्रीट कर सकते हो. सो दीज आर द पेशेंट्स हु नीड होम आइसोलेशन. अगर मॉडरेट वैरायटी ऑफ डिजीज है, मॉडरेट में कैसे पता चलेगा कि मॉडरेट है? अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 20-24 के ऊपर इंक्रीज कर रहा है और सैचुरेशन रूम एयर पे 93-94% के नीचे फॉल कर रहा है, इसमें फिर आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड बेड की जरूरत पड़ती है. यू नीड ए ऑक्सीजनेटेड बेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डिजीज. एज फार एज द सीवियर डिजीज इज कंसर्न, अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 30 के ऊपर चला गया, सैचुरेशन फॉल कर गया 90 के नीचे रूम एयर पे, देन यू नीड एन आईसीयू. Then just an oxygenated bed is not going to help. So mild disease, home isolation; moderate disease, hospitalization; and severe disease, you need an ICU bed. So home isolation में patients क्या क्या symptoms होंगे जिनको home isolate करना है? Patients will have fever, cough, sore throat, nasal congestion, body aches. थोड़ा बहुत उनको लगेगा कि थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बट उनका saturation maintain रहेगा. अगर पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करने लगता है या निमोनिया के साइंस आने लगते हैं, तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए. पेशेंट्स में ज्यादातर ट्रीटमेंट में आप घर पे विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी दे सकते हो, एवरमेक्टिन दे सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो. बट आप घर पे स्टेरॉइड्स, टैमीफ्लू, एजिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स आप घर पे देने की कोशिश ना करें. इट्स बेटर टू टेक दिस ड्रग्स अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस. Now, very important, those who are infected and are advised home isolation, what they should do? They should regularly check their temperature and oxygen saturation. One thing that I would like to tell you कि कोरोना वायरस की लाइफ स्पैन करीब 14 डेज का होता है. अगर आपने वो 14 डेज निकाल दिए ठीक ठाक, तो आप ठीक हो गए. सो आप 10 to 14 डेज आप आराम से रहें, कमरे में रहें, पेशेंट ट्रिपल लेयर मास्क यूज करें, लोगों के कांटेक्ट में ना आए. अगर आप ट्रिपल लेयर मास्क, अगर आपको इन्फेक्शन है तो चेंज इट आफ्टर 8 आवर्स. रूम में हैं, आप ठीक हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, डज नॉट मीन कि आप वहां पे आप यंगस्टर्स बॉडी बिल्डिंग करें. वो वहां पे रेस्ट लें और दे कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ फ्लूइड्स, वाटर, ORS, नारियल पानी, कोई भी फ्लूइड्स आप ले सकते हैं. और जब आपका आइसोलेशन खत्म हो तो जो भी आपने एरियाज टच किए हैं उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन कर दें. एक सिंपल टेस्ट होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई किसी को लगे कि भाई कहीं मैं वर्सन तो नहीं हो जाऊंगा, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप वर्सन होंगे या नहीं होंगे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि यू डू ए 6 मिनट वॉक टेस्ट. आप अपना सैचुरेशन मेजर करिए, वो 95-96% आ रहा है. उसके बाद 6 मिनट आप घड़ी देख के चलिए, आराम से चलिए आप. तो अगर आप चलने पे अगर आपका सैचुरेशन मोर देन 5% फॉल नहीं करता है तो चांसेस हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका 5 से 10% से ज्यादा सैचुरेशन फॉल कर जाता है तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So important in COVID behavior is आपको 10-14 दिन आपको निकालने हैं. आप कैसे भी निकालो, आराम से घर में बैठ के रेस्ट करके निकालिए. अगर आपने वो 14 दिन निकाल दिए तो फिर आप सेफ हो जाते हैं. उसमें आप रेगुलरली टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए, रेस्ट करिए, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स. आप कोशिश करिए कि किसी के कांटेक्ट में ना आए, मास्क पहनिए और अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा आइसोलेशन बना के रखिए. रिगार्डिंग लैब टेस्ट कोविड के लिए, कोविड के लैब टेस्ट कब कराने चाहिए? जब भी आप सिम्टोमेटिक होते हो
उस दिन से लेके आप करीब करीब अगर आप 10th डे 12th डे तक आप कराते हो तो आपका नेजोफेरेंजियल या ओरल स्वैब पीसीआर के लिए, आरटीपीसीआर के लिए, वो आपका पॉजिटिव आ सकता है। 14 डेज तक चांसेस होते हैं पॉजिटिव आने के, 14 to 17 डेज तक। उसके बाद वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको उसके बाद टेस्ट कराना है तो यू नीड टू गेट एन एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि ब्लड में 3 ml के सैंपल में होती है। तो इनिशियली फेज 14 to 17 डेज यू कैन गेट एन आरटीपीसीआर, और उसके बाद अगर आपको कराना है तो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपको ये बताएगी कि आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं, और या अगर लेकिन आपकी एंटीबॉडी अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो भी पॉजिटिव आ सकती है। तो कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए? आपको तब, अगर आपको परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 101 के ऊपर जा रहा है या 103 के ऊपर जा रहा है, परसिस्टेंट कफ हो रही है आपको कि जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, आपका सांस उखड़ रही है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी का टेस्ट आपने कराया उसमें रैपिड इंक्रीज हो गई है, या सीटी स्कोर में आपकी 50% से ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट आ रही है, या आपको लग रहा है कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब बिहेवियर वाइज आपका ऑल्ट्रेशन हो रही है बिहेवियर में, देन यू शुड गो टू हॉस्पिटल। कब आपको इमीडिएटली जाके भर्ती होना है? अगर आपको रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाता है, मोर देन 30 के अराउंड, 30 से ऊपर चला जाता है, सैचुरेशन 90% से फॉल कर जाता है, या ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, या कंटिन्यूअसली आपका सैचुरेशन फॉल कर रहा है, देन यू शुड इमीडिएटली गो टू हॉस्पिटल। सो दीज आर द रेड फ्लैग साइंस कि अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया है, बहुत तेज से सांस चलने लग गई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सैचुरेशन फॉल कर गया है, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, सीआरपी अगर आपने टेस्ट कराया वो बहुत हाई आया है, या सीटी स्कोर में आपका 50% लंग इन्वॉल्वमेंट आ गई है, देन यू शुड गो टू हॉस्पिटल। तो फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिक ट्रीटमेंट इसके सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। वो एक ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड्स है, एंटीकोएगुलेशन है, और प्रोन पोजिशनिंग। प्रोन पोजिशनिंग मतलब जैसे हम लेटते हैं वो हम पेट के बल लेट जाएं। सो दीज आर द 4 फीचर्स। ऑक्सीजन लगा दे पेशेंट्स को, बेसिकली आप स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, पर ये स्टेरॉइड्स और एंटीकोएगुलेशन आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही दें, अपने आप नहीं दें। और प्रोन पोजीशन मतलब अगर आप पेट के बल लेट जाते हो तो उससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ये जो ड्रग्स हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी की बहुत बात होती है कि हमें प्लाज्मा अरेंज करना है, रेमडेसिविर अरेंज करना है, टॉसिलिजुमैब अरेंज करना है, ये सारी सॉरी रेमडेसिविर, प्लाज्मा और टॉसिलिजुमैब जो हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं जिनके लिए एडिक्वेट ट्रायल्स नहीं हो पाए। तो इससे अभी आप इफेक्टिवनेस है या नहीं है ये कह पाना इनका मुश्किल है। जो लेकिन टाइम टेस्टेड है वो है ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, प्रोन पोजिशनिंग एंड एंटीकोएगुलेशन थेरेपी। सो ये चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक मिनिमम कॉस्ट की ड्रग्स हैं, बहुत छोटी बहुत सस्ती ड्रग्स हैं, और दीज आर, ये एक रामबाण है ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, और हम इनको छोड़ के रेमडेसिविर, प्लाज्मा और टॉसिलिजुमैब में दौड़ने लगते हैं। इनका हुआ ज्यादा बना दिया गया है। अगर हम रेमडेसिविर की बात करें तो ये जो 1000-1500 रुपए का इंजेक्शन था, ये इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ी कि एक एक इंजेक्शन हमारी सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई और 50,000 का एक एक इंजेक्शन मिलने लग गया। डोंट रन आफ्टर दैट। इसकी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, उन्हीं को चाहिए। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है, कंफर्म निमोनिया आ रहा है, सैचुरेशन फॉल कर गई है, और वो भी इनिशियल, ये इफेक्टिव होती है 5 to 7 डेज पे। ऐसा नहीं है कि आप 10 डेज के बाद दें तो इसका कोई इफेक्ट आ जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये भी ये मत समझिए कि उसको मरने से बचा लेगी किसी भी पेशेंट को। ये थोड़े दिन के लिए, 1 या 2 दिन के सिम्टम कम कर देगी और आपका हॉस्पिटलाइजेशन 1 से 2 दिन के लिए कम कर देगी। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करने वाली। असली रोल ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स का ही है। और होम आइसोलेशन पे कभी भी बिना डॉक्टर की गाइडेंस के आप इसको देने की कोशिश नहीं करें। रही बात प्लाज्मा थेरेपी की, प्लाज्मा थेरेपी के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो बताते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। इनिशियली कुछ दिन पे आप 3 से 5 दिन पे आप दे सकते हैं, वो भी रिकवर्ड पेशेंट, कोविड-19 सब्जेक्ट्स, जो पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हुआ है और उनमें एंटीबॉडीज हैं, तो वो दे सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं पेशेंट्स को। और लेकिन ट्रायल्स ने अब इनका सेकेंड वेव में हमने पाया कि कोई खास बेनिफिट नहीं है इसका। रही बात अब दूसरी बात की, क्या अगर हमें इन्फेक्शन हो चुका है, इफ वी हैव एनकाउंटर्ड द इन्फेक्शन, कैन बी री इन्फेक्टेड? यस, यू कैन गेट री इन्फेक्टेड।
अगर आपका 2 टेस्ट नेगेटिव आ गया और उसके बाद आपका पॉजिटिव आ रहा है, या आप RT-PCR 3 मंथ्स बाद पॉजिटिव होते हो, तो यू कॉल इट एज अ री इन्फेक्शन। और ये मत समझिए कि आपने 2 डोज ऑफ वैक्सीन लगवा ली तो अब आप सुपर हीरो हो गए। वैक्सीनेशन का अपना एक लिमिटेड रोल है, उसकी एफिकेसी 70-80% होती है। कोई भी आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से तो उतना नहीं बचाएगी जितना, हाँ, वैक्सीन का मेन रोल है आपका सीवियर इन्फेक्शन बचाने में। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको इन्फेक्शन अगर हुआ भी तो वो माइल्ड मॉडरेट फॉर्म पे खत्म हो गया, उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी मोर्टालिटी नहीं हुई, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारगर हथियार है, जिसे आप कह सकते हो कि रामबाण है हम सबके लिए। और अगर आपने इन्फेक्शन हुआ तो कब आप अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वेरी कर सकती है आपकी। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा जनरेट हो, अगर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और सीवियर इन्फेक्शन होता है तो आपको एंटीबॉडीज जनरेट काफी हाई क्वांटिटी में जनरेट कर सकती है। दैट वेरीज फ्रॉम इन्फेक्शन विच नोबडी नोज की हाउ ए बॉडी विल रिएक्ट। रही बात उसकी कि कब आप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जब आप इलिसिट की आपने, तो कितने समय तक वो मेंटेन रहेंगी बॉडी में इन्फेक्शन के बाद? वो ऑलमोस्ट करीब करीब 6 मंथ्स तक मेंटेन रहती है बॉडी में। कोविड वैक्सीनेशन, अगर आपकी रिकवरी हो गई है, इफ यू हैव सफर्ड फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन, आप अबाउट 4 to 8 वीक्स के बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकते हो, सेकेंड डोज। और अगर जिन लोगों को एक्टिव सिम्टम्स रहे हैं कोविड इन्फेक्शन के, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिन लोगों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ली है या हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वो करीब करीब 1 या 2 मंथ्स के बाद आप अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हो। इमीडिएटली कोविड इन्फेक्शन के बाद वैक्सीनेशन कराने का कोई आपको एडवांटेज नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखो कि अगर आपको कोविड हो गया है या कोई क्रॉनिक डिजीज या कोई भी आपको रीनल, मेटाबॉलिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डिक या कोई भी डिजीज है, तो भी आप वैक्सीन आप लगवा सकते हो। ये कंट्राइंडिकेशंस नहीं है। उल्टा इन पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत है। अगर आपको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, कोई आप स्टेरॉइड्स पे हो, HIV है पेशेंट को, तो भी इन पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की। ये मत समझिए कि उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और अगर आपका फर्स्ट डोज को वैक्सीन के बाद आपको इन्फेक्शन डायग्नोज होता है, तो भी आपको ठीक होने के, नेगेटिव टेस्ट करने के 4 to 8 वीक्स के बाद आपको सेकेंड डोज लगवानी है। अब देयर वाज लॉट ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग कि ये हमें वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ना वैक्सीन किस फॉर्म में, किस तरीके से डेवलप होती है, उसका प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने भी 2 वैक्सीन के ट्रायल्स किए हैं। दोज वैक्सीन्स विल सून कम। वन वाज ऑफ बायोलॉजिकल ई कंपनी एंड सेकंड इज ऑफ जाइडस कैडिला वैक्सीन। Zydus Cadila trial, we are presently doing it in 12 years, children more than 12 years till 80 years of age. तो वैक्सीन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस होता है कि इनिशियली जब भी वैक्सीन डेवलप होती है तो वो एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज में पहले उस मॉलिक्यूल को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी एनिमल स्टडीज होती हैं। वो रैट में टेस्ट होती है, माइस में टेस्ट होती है, गिनी पिग्स में टेस्ट होती है। तो ये एक प्री क्लिनिकल स्टेजेस होती हैं। उसके बाद फिर ये ह्यूमंस में टेस्ट होती है। पहले 30 वॉलंटियर्स में की जाती हैं, फिर उसके बाद 100 वॉलंटियर्स में उसकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाती है, फिर 1000 में। कोविड वैक्सीन में मैक्सिमम 28,000 50,000 वॉलंटियर्स में टेस्ट की गई। उसके बाद फिर DCGI, उसके फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है, अप्रूवल होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो ये बात हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इन वैक्सीन को हश आउट करके इनको रोल आउट किया गया है और या इनकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई है। हैव फेथ इन द इन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट एंड आवर कंट्री। डोंट अननेसेसरी क्रिएट ए फियर अमंगस्ट योरसेल्फ कि वैक्सीन ठीक नहीं है। वैक्सीन बहुत सेफ्टी है। वैक्सीन अभी मिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड। सो डिस्कस दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, अबाउट द सेफ्टी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द वैक्सीन। इस वक्त 2 वैक्सीन अप्रूव्ड है हमारी कंट्री में। वन इज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका की मदद से बनाई है, और कोवैक्सीन इज एन 100% इंडियन वैक्सीन which has been produced by Bharat Biotech. Both vaccines are equally effective. आपको जो भी मिले आप लगवा लीजिए, कंप्लीट डोसिंग करिए उसको। I hope I am clear. Yes, sir.
सो व्हाट आर द क्वेश्चंस कॉमनली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कोविड-19 वैक्सीन पे हो सकते हैं? मुझे हाउ विल आई नो कि आई एम एलिजिबल फॉर वैक्सीन? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एनी पर्सन हु इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन गेट अ वैक्सीन इन आवर कंट्री? उसे कोविन ऐप में अपने आप को रजिस्टर करना है ऑनलाइन, और वो जाके किसी भी सेंटर पे कहीं पे भी जाके वो लगवा सकता है। वो फर्स्ट डोज अगर एक सेंटर में लगवा रहा है तो सेकंड डोज दूसरे सेंटर में भी, जो आपके घर के पास है, जो आपके इंस्टीट्यूट के पास है, या जो आपको कन्वीनियंट है, आप कहीं पे भी लगवा सकते हो जाकर। क्या ये मैंडेटरी है कि हमें वैक्सीन लगवानी है? इज इट मैंडेटरी टू गेट वैक्सीनेटेड? ये दिस इज नॉट कंपल्सरी टू गेट वैक्सीनेटेड, बट ये टोटली एक वॉलंटरी प्रोसेस है। कोई आपको कंपेल नहीं कर रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है आप लगवाइए। आप, और अगर आप अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों, अपने आसपास वाले लोगों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में रहें, ज्यादा समय तक रहें, और सिर्फ आप ऊपर जाके आपको जिसने भी भेजा है, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहिगुरु से, उससे जल्दी मुलाकात नहीं दोबारा करना चाहते हैं, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। नहीं तो मिलने मिलाने का प्रोसेस कभी भी वो ऊपर वाला पूरा कर देगा। सो एक ये वॉलंटरी प्रोसेस है, ये एक इन्फॉर्म प्रोसेस है। यू मस्ट गेट, ईच वन ऑफ अस मस्ट गेट द वैक्सीनेशन, क्योंकि इसके लिए हर्ड इम्यूनिटी हमारी कंट्री में करीब अनलेस अंटिल 70% जब तक नहीं पहुंचेगी, इट इज अ बिग टास्क विद अ पॉपुलेशन ऑफ 125 करोड़ इसको वैक्सीनेट करना। और इसकी 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना हर्ड इम्यूनिटी के लिए कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। क्या बेनिफिट है कोविड? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन, ये मत समझिए कि आपने कोविड-19 वैक्सीन लगा ली तो आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। वैक्सीन की एफिकेसी करीब 70 to 80% होती है। और लेकिन वैक्सीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका हॉस्पिटल सीवियर डिजीज से प्रिवेंट करती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट करती है, आपको वेंटिलेशन से प्रिवेंट करती है, और आपको मोर्टेलिटी से प्रिवेंट करती है। हाँ, इन्फेक्शन के चांसेस, इन्फेक्शन आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है। व्हाट इज द, वैक्सीन लगाई कैसे जाती है, कितनी डोज लगती है? ये हाथ में जैसे बाकी टीके लगते हैं डेल्टॉइड मसल में, ये इंट्रामस्कुलर, दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों इंट्रामस्कुलर डोज लग रही हैं, और इसकी 2 डोज लगती है। लेकिन अब ग्रेजुअली करके वैक्सीन आ रही हैं जिनकी सिंगल डोज भी लगती है और जिनकी 3 डोजेस वाली भी है। तो कोई भी आपको वैक्सीन मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द रूट, अपॉन द वैक्सीन विच यू आर टेकिंग, यू कैन सेफली गेट दैट वैक्सीनेशन। जिस पर्सन को रिसेंट कोविड इन्फेक्शन हुआ है, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, आप 1 महीने के बाद, आप आफ्टर यू हैव टेस्टेड नेगेटिव, you can get the vaccination done after 1 month of being tested negative. Can I get COVID-19 because of, क्या मुझे वैक्सीनेशन के बाद COVID-19 हो सकता है? नहीं, आपको वैक्सीनेशन के बाद COVID-19 नहीं हो सकता। ये एक डेड वायरस होता है जो वैक्सीन के अंदर डाला जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करना, और अगर आप इन्फेक्शन एनकाउंटर करो तो वो फिर बॉडी आपकी एंटीबॉडी जनरेट करके आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सकता है। तो ये या तो डेड वायरस होता है या एक वायरस की सब यूनिट वैक्सीन होती है, जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तो जनरेट कर सकती है, जो आपको प्रोटेक्ट तो करेगी लेकिन आपको डिजीज नहीं कर सकती। कितने समय तक आपको वैक्सीन प्रोटेक्ट कर सकती है, एज सच अभी इसका डाटा नहीं है, लेकिन जो अभी डाटा आ रहा है वो बता रहा है कि करीब 6 months to 1 year तक आपको सीवियर डिजीज से प्रिवेंट करेगी। क्या ये मैंडेटरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें? यस, in spite of vaccination, triple layer mask, double mask, hand hygiene, sanitizers, physical distancing, it is mandatory for each one of us. I hope I am clear till now. Yes, sir. So if we come to myths and facts, एक मिथ ये है कि ये वैक्सीन डेवलप बहुत रिकॉर्ड टाइम में डेवलप हुई। इसका मतलब ये है कि सेफ्टी और एफिकेसी क्वेश्चन में है। I just shared इसका डेवलपमेंट प्रोसेस, कि ये जो वैक्सीन होती है वो पहले एक्सप्लोरेटरी फेज में होती है, फिर ये एनिमल स्टडीज होती हैं, फिर उसके बाद ये ह्यूमन में होती हैं। इसके फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के ट्रायल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद इसको DCGI इसको अप्रूव करता है, उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद ये प्रोडक्शन फेज में जाती है और उसके बाद इसकी क्वालिटी कंट्रोल भी होती है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी कोई सेफ्टी और एफिकेसी कोई क्वेश्चन में है। दीज आर फुली सेफ वैक्सीन्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हैव फेथ इन योर साइंटिस्ट,
have faith in the people, have faith in the country, have faith in the political system of our country. There is no question by which you should trust or question the safety and efficacy. Another myth is कि vaccines rigorously test नहीं हुई है humans में. इतने बड़े मैं actually I am doing the vaccine trials since 2012, almost for 8 and 9 or almost 9 or 10 years. My vaccine trial I did was in 2012. इतने बड़े वैक्सीन ट्रायल्स जितने कोविड वैक्सीन के हुए हैं मैंने अभी तक नहीं देखे. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट्स की इसी में रही है. तो all safety protocols have been followed, including human testing. So don't worry. Get yourself vaccinated and your family members vaccinated. हमें कौन सी दो वैक्सीन अप्रूव्ड है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, एक स्पुतनिक 5 आ रही है, ग्रेजुअली करके बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन भी आएगी और थोड़े दिनों में जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आ जाएगी. हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? सारी वैक्सीन सेफ हैं, ऑल आर इक्वली इफेक्टिव. 5-10% थोड़ा सा इधर उधर है, किसी की एफिकेसी 75% है, किसी की हार्डली मैटर्स. जो आपको वैक्सीन मिल रही है आप वो लगवाइए, जो कन्वीनियंट है वो लगवाइए. हार्डली मैटर्स which vaccine you are getting, but what is more important is that you should get yourself and your family members vaccinated. Another myth कि इनमें harmful ingredients होते हैं. कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इनमें harmful ingredients होते हैं. इनको properly testing के बाद ही लगाया जाता है. So don't worry, there are no harmful ingredients in any of the vaccines. Another myth is COVID-19 vaccine can cause women to become sterile. There is कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि COVID-19 वैक्सीन ने कोई स्टेरिलिटी कॉज की गई है. ये सारे मिथ्स हैं जो हमें डराने के लिए बनाए जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन जो है मिसकैरी, प्रेग्नेंट वुमेन को मिसकैरेज कॉज कर देगी या मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस कर देगी. अभी प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में तो वैक्सीन नहीं दी जा रही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस या कुछ कर देगी. These are just myths. There are no facts such as these. कुछ कहते हैं कि माइक्रोचिप लगी हुई है वैक्सीन में जो कि ट्रैक कर लेगी. जब 2000 का नोट आया था तो उसमें भी इशू आया था, अरे माइक्रोचिप लगा दिया है वो जमीन से निकाल लेंगे आपका. ये सब कुछ नहीं है. These are totally false and baseless statements. ठीक है ना? Don't even give a ear to them. वैक्सीन एलर्जीज कॉमन होती हैं, सीवियर होती हैं. हाँ, कुछ एक पेशेंट्स में हो सकती हैं वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स, अगर उनमें वो इंग्रेडिएंट्स से कुछ एलर्जिक है तो वो नहीं लगवाएं, बट 99% में किसी में कोई रिएक्शन नहीं होता है. मुझे एक शॉट लेना है. अभी जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उनकी 2 शॉट्स अप्रूव्ड हैं. 4 to 8 वीक्स अपार्ट आप सेकेंड डोसेज ले सकते हो, तो आप आराम से लीजिए. अगर आपकी 3 डोजेज वाली आती है तो आप उनकी 3 डोजेज वाली लीजिए जो भी वैक्सीन आएगी, और अगर एक सिंगल डोज है तो सिंगल डोज वाली वैक्सीन ले सकते हैं. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यू शुड गेट ए कंप्लीट वैक्सीनेशन शेड्यूल अमंगस्ट योरसेल्फ. अगर 2 डोज की है तो आप 2 डोज लीजिए, सिंगल डोज वैक्सीन है तो सिंगल डोज लीजिए. जो भी है, इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स वैक्सीनेटेड. Vaccination should be the festival. It should be a celebration time like festival. डरने की इसमें कोई इशू नहीं है. मुझे कोविड-19 हो जाएगा इस वैक्सीन से, कोई नहीं. कोविड-19 हो वैक्सीनेशन से नहीं होगा. पर हाँ, अगर आप अपना प्रोटेक्शन गियर करोगे, अगर प्रोटेक्शन गियर डाउन करोगे, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे, सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करोगे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग नहीं करोगे, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजर यूज नहीं करोगे, तो आपको जरूर कोविड हो जाएगा. हाँ, वैक्सीन से कभी कोविड नहीं होने वाला. अगर मुझे कोविड-19 हो गया है तो क्या मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको तब भी जरूरत है. आप इन्फेक्शन नेगेटिव टेस्ट होने के 1 मंथ के बाद यू कैन गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली तो मुझे फेस मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. यू नीड टू मेंटेन योर प्रोटेक्शन गियर. आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर्स यूज करने हैं, आपको हैंड वॉशिंग करनी है, और आपको सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है. थैंक यू. आई थिंक नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस. Yes, yes, Professor Manish, thank you so much. It was a very, very insightful talk that you have given on the topic. And I think a lot of questions you've already
taken up in your presentation, which was a very, very good presentation. काफी हद तक doubts काफी लोगों के clear हो गए होंगे, but still we are getting lots of questions in the chat box. If you can see, I would like to request. Shall I read these questions and try to answer them one by one? Sir, there is a student of ours. She will be reading the questions for you, Okay. and then you can answer. Khyati, are you there? Yes, Khyati. सुमन जी जरा उनको अनम्यूट कर दीजिए. ओके मैम. प्लीज unmute yourself. Yeah, Khyati, you can start asking the questions which you have noted down. Okay, ma'am. So our first question is from Sakshi. She's asking, I recovered from COVID on 7th May. Please tell me after how many days of recovery can we register for vaccination? Okay, Sakshi, just I answered कि जब आपको 7th मई को आपको रिकवरी हो गई है कोविड से, आप उसके 1 मंथ के बाद आप कोविन ऐप में रजिस्टर करा के अपने आप को फर्स्ट डोज लगवा सकती हैं. उसके अबाउट 6 to 8 वीक्स के बाद आप सेकंड डोज लगवा सकती हैं. Okay, sir. Thank you. Other question is there any side effects of Covishield? कनिका, साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं. जैसे कि अगर आप अगर घर पे रहती है, जिस छत के नीचे भी आप बैठी हैं वो छत गिर भी सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम छत के नीचे रहना छोड़ देते हैं. ठीक है ना. तो इसी तरीके से कोविशील्ड, इन सब जो भी वैक्सीन होती है, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, इनके सब माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे कि हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, दर्द हो सकता है इंजेक्शन साइट पे, और थोड़ा सा रेडनेस हो सकता है. तो बट इनकी आपको बहुत वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी देखनी होती है कि ये हमें लेकिन कोविड से बचाएगी, सीवियर डिजीज से बचाएगी. आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रही है तो एक दिन का फीवर या हल्का सा पेन या एक हल्का सा इंजेक्शन की छोटी सी नीडल का पेन कोई मायने नहीं रखता. तो आप जाइए, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाइए. डोंट वरी अबाउट द साइड इफेक्ट्स. Next question is from Yogesh. He's asking, hello sir, in my family my mother has a lot of ailments and she being ill all the time, and my father too have diabetes, so is it okay if they take the vaccination into consideration? या योगेश, यस, आपको फादर को तो आपको ज्यादा जरूरत है, डायबिटीज है तो उनमें ज्यादा उनको और ज्यादा जरूरत है कि वो वैक्सीन लगवाएं. अगर जिनको भी एलिमेंट्स हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको कोविड के ज्यादा चांसेस हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि उनको ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, उनको आप पहले जाके लगाएं, अपने आप को बाद में लगवाएं. Thank you, sir. Next question is, my younger son had loss of taste. How many days will it take to for taste to get restored? या रुचिका, टेस्ट हमने फर्स्ट वेव में देखा कि लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट सेंसेशन कोविड इन्फेक्शन के बाद हो रही थी. ये करीब 1 से 1.5 महीना नॉर्मल लोगों में लग सकता है, लेकिन कभी 3 से 4 महीने भी लग रहे हैं. तो आप मान के चलिए कि 1 से 3 महीने के अंदर ये लॉस ऑफ टेस्ट ठीक हो जाएगी अपने आप. सर मेरा तो एक्चुअली आई आल्सो सफर्ड फ्रॉम कोविड इन अक्टूबर, बट आई हैड इट ओनली फॉर 48 आवर्स. सो नाउ दिस टाइम फॉर हिम इट्स ऑलरेडी 5 डेज. सो मतलब ये इतना लंबा चलता है मतलब लॉस ऑफ टेस्ट? मैम 48, हाँ वो डिपेंड करता है लॉस ऑफ टेस्ट करीब, लेकिन वो इनिशियल फेजेस में आपकी इंप्रूवमेंट आ गई होगी. ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों में जब तो बेसिकली मैंने बताया ना, कोविड की लाइफ 14 डेज की होती है. वो आपकी बॉडी में 14 दिन तक रहता है वायरस. आपको 14 दिन निकालने हैं. आपने वो 14 दिन निकाल दिए, ग्रेजुअली करके बॉडी अपने आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अपने तो इसका ये ध्यान रखना है कि 14 डेज आपको निकाल दीजिए आप. हाँ ठीक है, थैंक यू. Sir, does 2DG powder developed by DRDO will help in recovering the COVID patients? हेलो. Hello. Yeah, Kathy, please repeat the question. Maybe sir didn't hear it. Okay. Sir, does 2DG powder developed by DRDO will help in recovering the COVID patients? अभी तक तो वो मार्केट में आया नहीं है, अभी इनिशियल फेजेस में ही आई है वो ड्रग. अब वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली जो उसका मैकेनिज्म है वो इनिशियली पहले कैंसर सेल्स के लिए यूज होता था,
वो म्यूटेंट्स के लिए वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता था, तो वो आएगा तो पता चल पाएगा। अभी जो उसके ट्रायल्स इनिशियली जो फेज 3 तक के ट्रायल्स हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि कोविड में हेल्प करेगा। बाकी तो लार्जर ट्रायल्स होंगे तो पता चल पाएगा, बट दैट वुड बी क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म है, ओरल वैक्सीन है, नॉट ओरल वैक्सीन, ओरल ड्रग है, तो चांसेस हैं कि कोई कॉस्टली भी नहीं होगी, तो चांसेस हैं कि दिस विल बिकम पॉपुलर, बट ये वक्त बता पाएगा। अभी इसके ट्रायल फेज 3 तक के ट्रायल्स तो एनकरेजिंग है जो बता रहे हैं उसके। Okay, sir. Next question is, hello sir, my brother-in-law is suffering from typhoid. So is there any percent of getting COVID also, as he is getting dry cough, fever and body pain? ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम एक इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं तो दूसरा इन्फेक्शन नहीं अकर करता है, लेकिन अगर आपका टाइफाइड फीवर रिजॉल्व कर गया है 14 डेज में, ज्यादातर टाइफाइड ठीक होने में 10 to 14 डेज लगते हैं। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके कफ परसिस्ट कर रहा है, यू कैन टेक इनहेलर्स। अगर उसके बावजूद भी कफ परसिस्ट करता है, देन यू कैन गो फॉर RT-PCR टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप सोच सकती हैं कि हाँ उनको होगा, अदरवाइज कोई चिंता करने की बात नहीं है। Sir, should we get antigen test after vaccination? No, it is not required. Okay. Just get yourself vaccinated and then forget. Sir, since the day I had taken second dose of Covaxin, I am having backache. Should I get COVID test? कितने दिन हो गए हैं सेकेंड डोज को लिए हुए? Anita Sikandar, this is a faculty member. She can write what the sir is asking you about. हाँ, रिगार्डिंग अगर आपको बैकएक रह रहा है और आपने सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन लिया है तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन आप पहले एनकाउंटर कर चुकी हो, तो यू कैन गेट ए कोविड टेस्ट। इससे कोविड टेस्ट का पता चल जाएगा कि भाई आपको हाँ कोविड इन्फेक्शन है नहीं है, क्योंकि बॉडी एक कोविड इन्फेक्शन का एक सिम्टम होता है, जो कि कई बार कोविड सिर्फ बैकएक और बॉडी एक के साथ प्रेजेंट करता है। तो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इट डन, यू कैन गेट इट डन। So first dose of Covishield and second dose can take Covaxin. I mean to say, it is necessary to take same vaccine in both the dose. मैं इसको जैसे वैसे ही आंसर करूंगा कि आपने एक साल श्यामलाल कॉलेज से 6 महीने श्यामलाल कॉलेज में पास किया और 6 महीने आप हंसराज कॉलेज में चले गए, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको पूरा सेमेस्टर तो कम से कम या 1 साल तो कंप्लीट करके ही आप शिफ्ट करोगे ना। तो आपको आप जो भी वैक्सीन लगवा रहे हो उसका पूरा शेड्यूल आपको उसी वैक्सीन के साथ कंप्लीट करना है। Khyati, please also give the name of the person who has asked question. Okay, ma'am. Priya is asking, hello sir, my question is, there is some people who think vaccine is useless and there is no benefit of vaccination. Even one of my family friends says after the vaccination process, COVID cases increase. Even they don't want to get vaccinated themselves. So what should we do to this type of thoughts? हाँ, दैट्स व्हाई वी नीड यंगस्टर्स लाइक यू, जो कि इन लोगों को समझा सके कि नहीं ऐसा नहीं है। कोविड इंक्रीज हुआ है वो वैक्सीनेशन के बाद इंप्रूव नहीं हुआ है। वो लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की, राइट वे ऑफ मास्क नहीं पहनते थे, ठीक है। तो आपका इन चीजों के कारण कोविड इन्फेक्शन बढ़ा है। और ये सब चीजें जो भी हैं, जो इस टाइप के लोग हैं वो हमारी एनिमी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मेन पर्पस हमें बेसिकली भी अंदर से कमजोर कर देना है। हमारा हेल्थ सिस्टम को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। तो डोंट गिव इट ईयर टू देम, बट ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि नहीं ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन एक हमारे पास एक रामबाण है, एक कारगर हथियार है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और ईच वन ऑफ अस मस्ट गेट द वैक्सीनेटेड। ये गलत धारणा है और हम इन चीजों को ना हमें इनको प्रोपेगेट करना है, ना हमें इनको फॉलो करना है, ना हाँ, पर इन लोगों को समझाना जरूर है। इसीलिए हमें यंगस्टर्स चाहिए आप जैसे, जो कि इनको समझा सकें और इनको सही चीजों को, दैट इज व्हाई एजुकेशन इज नीडेड। Okay, sir. Hemant Nandwani is asking,
Sir, is vaccination safe for those who are suffering from anemia and liver disease? Yes, Hemant, vaccination is safe for people who are suffering from anemia and liver disease. No, there is no harm in getting them. Vaccines वो आपके liver के through pass नहीं करती है. Dinay is asking, sir, what is the relation between COVID infection and typhoid? टाइफाइड एक बैक्टीरिया होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी से स्प्रेड करता है, जो कि फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड करता है, क्योंकि इस अगर हम ठीक से वेजिटेबल्स नहीं धोएं, हाथ नहीं धोएं, तो उससे टाइफाइड स्प्रेड करता है. कोविड एक वायरस है, कोविड-19 एक वायरस है जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड करता है. एक घर में एक आदमी को टाइफाइड है तो उससे दूसरे आदमी को टाइफाइड नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, घर में एक आदमी को कोविड है तो उससे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से दूसरे आदमी को कोविड जरूर हो जाएगा. तो कोविड इन्फेक्शन इज डेफिनेटली मोर डेंजरस, मोर ट्रांसमिसिबल एंड मोर इफेक्टिव देन टाइफाइड वायरस, देन टाइफाइड bacteria of typhoid. Okay, sir. Aditya Tagore is asking, any precautions to be taken before or after vaccination, say for example, alcohol, etc. यार दारू पी के कौन टीका लगवाने जाता है भाई. अल्कोहल या कोई कुछ नहीं. आप बेसिकली आप नॉर्मल प्रोसेस जैसे आप होते हो, ब्रेकफास्ट करके जाएं, वैक्सीन लगवाएं और मस्त होके आ जाएं. आप आधा घंटा वहां रुकें, वो लोग बस ये चेक करते हैं कि भी कोई बुखार तो नहीं हो रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाने जाओ. Okay, sir. Yatharkar is asking, is there any need of any testing of COVID after 14-15 days spent in home quarantine? नहीं, अगर आप ठीक हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. Dr. Madan Mitra is asking, Dr. Saab, I took first dose. After that, I tested positive 2 days before. Should I take ivermectin? Should I take second dose of vaccine? हाँ, नहीं, ivermectin. Should I take ivermectin? अच्छा, तो कितने दिन हो गए हैं आपको टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट किए हुए? 2 days. हाँ, आप ivermectin ले सकते हो 12 mg OD for 3 days, कोई इशू नहीं है. गोवा गवर्नमेंट ने सबको ivermectin रिकमेंड किया है, लेकिन ऐसे सबको ये प्रोसेस सबको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक कह रहे हैं कि गोवा गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, लेकिन ये प्रोसेस ठीक नहीं है. अगर आपको कोविड हुआ है तो आप ले सकते हो ivermectin 12 mg OD, आप 3 दिन के लिए ले सकते हो. एक गोली खानी है 3 दिन तक के लिए 12 mg वाली. Okay, sir. So Vishal is asking, can mosquitoes or ticks spread the virus that cause COVID-19? अनलाइकली, अभी तो नहीं बताते कि मॉस्किटो स्प्रेड कर सकती हैं, अभी तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं है. वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे सामने खड़े होकर, है ना, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से जो, तभी तो मास्क लगा रहे हैं कि अगर हम दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो 95% चांस है कि अगर एक को कोविड है तो दूसरे को नहीं होगा. लेकिन अगर दोनों ने नहीं लगाया हुआ है मास्क, एक को कोविड है तो दूसरे को 95% चांस है कि हो जाएगा. Okay, sir. So Simple Arora is asking, please guide about post-COVID care. पोस्ट कोविड केयर प्री कोविड केयर की तरह ही है. आपको अपना पोस्ट कोविड केयर है कि आप 1 मंथ के बाद, आपका रिकवरी के बाद आप अपनी वैक्सीन लगवा लें. आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, आप मास्क पहन के रखें. कोशिश करो कि डबल लेयर मास्क पहनो. अगर आप कॉटन का मास्क लगा रहे हैं तो उसके ऊपर 3 लेयर सर्जिकल मास्क जरूर पहने. फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें. बार बार आप अपने हाथ को फेस पे नहीं लेके जाएं, बार मुंह पे, हाथ पे, आंख पे, इन सब पे नहीं लगाएं. और आप सैनिटाइजेशन, तो जो सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, हैंड वॉशिंग इज डेफिनेटली मच बेटर, सस्ता और टिकाऊ तरीका. हाथ धोते रहें और हाथ को बार बार मुंह पे नहीं लेके जाएं. Vibha Gupta is asking what to do for post-COVID headache. पोस्ट कोविड हेडेक का वो नॉर्मली आप पैरासिटामोल ले लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा. 650 mg वाली. Kanika Jaswal is asking, after 2 doses, we are protected for 6 months. So do we have to get vaccinated after 6 months? 6 months तो बहुत जल्दी हो जाएगा कनिका. 6 months to 1 year तक
उसका प्रोटेक्शन है। उसके बाद हो सकता है कि आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है, अभी तो वो रिकमेंडेशन आई नहीं है उसकी, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आए तो आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ सकती है उसकी। Priyanka is asking how pregnant women can protect themselves. In the same manner, how a non-pregnant woman or a man should protect themselves. Process is same, COVID appropriate behavior. Bharat is asking, Goa government has recommended ivermectin to all above 18. Can you tell us about the role of ivermectin regarding COVID-19? नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है जो कि बताती है कि हर आदमी को 18 साल के ऊपर को एवरमेक्टिन लेनी चाहिए। इन्हीं चीजों के, इन्हीं डिसीजंस के कारण आज एक ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है ड्रग्स की अननेसेसरी रिकमेंडेशंस के कारण, और फिर उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि एक एक गोली 50-50 रुपए की मिल रही है। जिसको कोविड-19 टेस्ट हुआ है वही 3 दिन के लिए बस ले, अननेसेसरी सबको लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसको ये रिकमेंड नहीं करूँगा एज ए डॉक्टर। We have treated, our hospital has been made a exclusively COVID hospital where we have about more than 1,000 patients admitted at a time. तो कोई ऐसा वो नहीं है। लास्ट मार्च से हम कोविड देख रहे हैं, कोई सबको ले 18 इयर्स को, ना मैंने अपने घर में किसी को दी है ना मैंने रिकमेंड की है। लेकिन हाँ, जिसको लग रहा है कि कोविड इन्फेक्शन है या उसको टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ वो ले सकता है आइवरमेक्टिन, वो भी अगर बच्चों में नहीं, एडल्ट्स में। हाँ, 6 इयर्स के ऊपर रिकमेंडेड है, 6 इयर्स के नीचे तो रिकमेंडेड भी नहीं है, और 18 इयर्स में सबको लेने की जरूरत नहीं है। Okay, what is the role of ivermectin? व्हाट इज द, ये अब एक्चुअली अब मैं ये एक्चुअली लेमैन के लिए जानने की एक्चुअली इसमें जरूरत नहीं है। आइवरमेक्टिन हेल्प करती है कुछ, उसके जो ट्रायल्स में उसका बेनिफिशियंस दिखाया गया है, उसका चिंता नहीं करो। ये दिस इज नॉट, लेमैन के लिए जानने की जरूरत नहीं है इसमें। Okay, so Meera Sood is asking, if you miss the required time between 2 doses, what are the repercussions? कुछ नहीं, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। रेपरकशंस ये है कि एक डोज के बाद आपकी प्रोटेक्शन नहीं आती है। आपकी जो प्रोटेक्शन आने में टाइम लगता है, जब आप 2 डोज लगवा लेते हो उसके करीब करीब 2 वीक्स से 3 वीक्स के बाद आपकी प्रोटेक्शन शुरू होती है। आप ये मत समझो कि आज आपने 1 डोज लगवा ली तो कल से आप प्रोटेक्ट हो गए। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, आपका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आपको वेंटिलेटर नहीं लगे, आप हॉस्पिटल, आपको घर वाले आपके आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड के लिए ना दौड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं दौड़े, ठीक है, आप रहना चाहते हो इसी दुनिया में, एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तो आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं, और टाइमली दोनों डोसेज लगवाएं। Okay, Kanika Jaswal is asking, sir, as I have taken my first dose and I am having back pain, so it means this vaccine is effective. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक को बैक पेन हुआ उसके लिए इफेक्टिव हो गई और जिसको बैक पेन नहीं रिसीव किया उसको उसके लिए वो इफेक्टिव नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो आपकी बॉडी में इफेक्टिवनेस वैक्सीन की, जो हम वैक्सीन लगाते हैं और एंटीबॉडी जनरेट होती है उससे होती है। तो अगर आपको अगर इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो आपको एंटीबॉडी लेवल्स, अपने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल्स कराने पड़ेंगे, उसी से टेस्ट हो पाएगी। बैक पेन और थोड़े बहुत सिम्टम से नहीं पता चलता कि वैक्सीन इफेक्टिव है नहीं। Khyati, let me ask the questions because the questions are very, very repetitive. Sir, there is a question by Hemant Nandwani. My mother is suffering from lack of vitamin B12 and D3 in her body. Is vaccination safe for her? Yeah, it is safe for her. There is no problem. She can easily get her vaccinated without any fear. Sir, if someone has, ये सुरेश कुमार जी का क्वेश्चन है कि किसी को अस्थमा रहा हो तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। अस्थमा तो एक लंग की बीमारी है, तो और ये कोविड-19 इन्फेक्शन भी लंग को ही अफेक्ट करता है, तो आपको जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। जी, अनीता सिकंदर पूछ रही हैं, O2+ मास्क कैन इट रिप्लेस N95 मास्क? नो, O2+ मास्क कैन नॉट रिप्लेस N95 मास्क। N95 की अपनी वैल्यू है, N95 बहुत इफेक्टिव है। आप N95 लगाएं, उसके ऊपर चाहे 3 लेयर सर्जिकल मास्क लगा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। N95 के ऊपर O2+ लगा लें, कोई इशू नहीं है। N95 तो मैंडेटरी है।
Okay, so Umesh Joshi पूछ रहे हैं, hello sir, it's my 16th day today of infection, still having little cough. Can I end my isolation now? If yes, what kind of precautions I have to take? Yes, Umesh, you can end your isolation now. 16 day है. कफ, रही बात कफ की, थोड़ा बहुत कफ है उसमें वो परसिस्ट करता है तो वो ग्रेजुअली करके सबसाइड कर जाएगा. इट विल टेक टाइम. कफ थोड़ा सा लंबा समय लेता है, 3 वीक्स लग जाते हैं कई बार ठीक होने में. तो यू विल सून गेट ऑल राइट. नाउ यू कैन एंड योर आइसोलेशन एंड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ मेंटेनिंग. अननेसेसरी आप बाहर नहीं जाएं, बाहर नहीं जाएं, सबसे नहीं मिलें, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, वही सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. Archie is asking, my grandparents got COVID positive after both the dosage of vaccine. हाँ, तो जी. वो तो मैंने बताया कि आपको वैक्सीन जो है, आप ये मत समझिए कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप कोई सुपरमैन हो गए. वैक्सीन के बाद भी आपको पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन हाँ, अब आप ये देखो कि कोविड पॉजिटिव होना नहीं है, लेकिन उनको आप देखो कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी, वेंटिलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी, सीवियर फॉर्म में नहीं गए. तो आप सोचिए कि वैक्सीन अपना काम कर गई, वैक्सीन ने आपको बचा लिया. अगर यही चीज अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगी होती और उन्होंने एनकाउंटर किया होता तो हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती या उनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती. Sir, Amritanshu is asking, I have little bit problem in breathing. Should I go for testing? टेस्टिंग व्हाट? कोविड वैक्सीन Yes, फॉर कोविड yes. एंटीजन. RT-PCR, I think that's what he's asking. वो अगर ये एक्यूट इलनेस है, अभी हुई है जस्ट ये, तो आप तब आप करा सकते हैं. अगर रेगुलर बेसिस पे आपको रहती है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कराने के लिए. Okay. Sumanjit Kaur is asking, 65-year-old taking blood thinning medicine, is she eligible for vaccination? Yeah, she is eligible for vaccination, no problem. Okay, sir. Krituraj Anand is asking, how often and for how long should we take vitamin C tablets? विटामिन सी टैबलेट अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आप 14 डेज के लिए ले सकते हैं. कोविड उसमें रिकमेंडेड है 500 mg. आप एक गोली सवेरे शाम ले लीजिए 14 डेज तक के लिए. और अगर नहीं हुआ है तो रेगुलर बेसिस पे आप विटामिन सी लेते रहिए. हमारी कंट्री भी तो महान है. जैसे ही पता चला विटामिन सी का रोल है कोविड में, नींबू 50 रुपए किलो को 150 रुपए कर दिया है. आपको इन चीजों को सपोर्ट करने की बजाय हम मतलब मौका ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम बस पैसा कमा सकें. और तो हम लोग को एज ए यंगस्टर्स हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है. हमें गलत चीजों को प्रोपोगेट नहीं करना है. कोई कह रहा है कि वैक्सीन इनफेक्टिव नहीं है, उसे समझाना है, और गलत चीजों को सपोर्ट भी नहीं करना है. Sir, last question is, सर ग्रामीण, ये अखिलेश शर्मा पूछ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के लिए क्या किया जाए क्योंकि वो लोग वैक्सीनेशन के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं. और सर जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है तो क्या वो सेकंड डोज लगवानी जरूरी है और कितने टाइम के बाद लगवाएं? वो तो खैर आप बता चुके हैं, बट ये जो फर्स्ट पार्ट है सर. हाँ, मैं बताया आपको सेकंड डोज लगवानी जरूरी है और वो 4 to 8 वीक्स के बाद लगवाएं. जी. सॉरी. और ग्रामीण परिवेश के जो लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं लगवाने को तैयार है. ज्यादातर इसका कारण मुझे लगता है कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि जो गलत भावनाओं को प्रोपोगेट करते हैं सिर्फ अपने एफिलिएशंस के लिए. इन सब चीजों में नहीं पड़े. हम उनको समझा सकते हैं कि भाई नहीं, ये गलत चीज है. हमें उनको और उनसे पूछें कि क्यों नहीं, उनको क्या किस चीज का डर है, वैक्सीन लगवाने से क्या हो जाएगा. क्या आज तक उन्होंने बच्चों को इतने टीके लगते हैं, छोटे बच्चों को नहीं लगवाई क्या वैक्सीन? सेम प्रोसेस इनका भी डेवलपमेंट का है. क्या परेशानी है वैक्सीन लगवाने में? हम उन्हें समझा सकते हैं. बाकी तो फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एवरीबडी इज फ्रीली इंडिपेंडेंट. मैंने कहा जैसे कहा कि ये टोटली वैक्सीनेशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है. कोई किसी के लिए मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है कि कोई लगवाया जाए. सर क्योंकि जो स्पेसिफिकली देखने में आया है कि मेल मेंटालिटी इस वक्त, आपने विमेन के लिए तो आपने अपने प्रेजेंटेशन में डाला था कि स्टेराइल हो जाएंगे, क्या सेम मेंटालिटी सेम थॉट प्रोसेस इज आल्सो गोइंग ऑन इन मेन एज वेल कि इसमें कोई रिप्रोडक्टिविटी कर पड़ेगा क्या? अरे इवन आप देखिए कि जब ये तो कोविड वैक्सीन है, मुझे ध्यान है जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होता था 1994 में, तो ओरल पोलियो वैक्सीन का, पोलियो वैक्सीन जो होती है जो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, हाँ जी, तो उसका हम लोग एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जाके सबको पिलाते थे.
एज ए वॉलंटरी प्रोसेस कि भैया हमने कि भाई सबको पिलाएंगे जाके, तो लोग कई लोग तो हमें घर में ही नहीं घुसने देते थे, भगा देते थे कि नहीं ये हमें स्टराइल कर देगा, हमें ये कर देगा। अरे यार किसको किसने स्टराइल कर दिया, ये सब मतलब अब पता नहीं अब इन चीजों का क्या भ्रांतियां हैं। आप देखिए अगर वो अब पोलियो हो जाए किसी को, अगर उसने नहीं पिलाया है तो उस इंसान की जिंदगी देखिए आप, जी। वो उनको मंजूर है। लेकिन ये नहीं है कि 2 ड्रॉप, उसका तो ओरल ड्रॉप पिलाई जाती थी, 2 बूंदे बस मुंह में डालनी होती थी। हम्म, तो ये हमारी कंट्री ऐसा ही है, इसी के लिए तो ये डॉक्टर रवि और आप लोगों ने मैम ये वेबिनार रखा है ताकि ये बच्चे एजुकेट हों, यंगस्टर्स एजुकेट हों, वो आगे जाके फर्दर प्रोसेस, और हमारे बाकी लोगों को अब जितने भी लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो लोग जाके आगे अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर्स को फर्दर एजुकेट कर सकें। जी. Sir, Rahul Tomar is asking, sir, sometimes while using double mask, I feel suffocation. Will it reduce the oxygen level along with protection from COVID? नो इट विल नॉट रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल्स। हम तो एक्चुअली, आप तो डबल मास्क यूज कर रहे हैं, हम तो मास्क के ऊपर फेस शील्ड लगा के पीपी किट में 4-4 घंटे तक पेशेंट्स का राउंड लेना पड़ता है। तो आप देखो कि हमें तो दूसरों का भी उसको भी हेल्प करनी है, पेशेंट की भी, और खुद को भी बचा के चलना है, और ये भी ध्यान रखना है कि घर में इन्फेक्शन नहीं लेके आए। तो वो आप ग्रेजुअली करके आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी अगर आप यूज करना शुरू करोगे। जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ दोगे कि भाई सफोकेशन फील हो रही है, आप वो एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह आप उसे आराम से लगा लोगे, उस पर ध्यान मत दो, आराम से नॉर्मल प्रोसेस में सांस लो, भूल जाओ कि चेहरे के ऊपर मास्क है। टाइटली फिटिंग मास्क इतना होना चाहिए कि साइड से आपकी एयर भी नहीं जा सके। जी. Sumanjit Kaur is asking, then who should not get vaccinated? There is lot of confusion on this. सुमनजीत, एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। कुछ एक कंट्रा इंडिकेशंस हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक हैं, जब आप जाओगे वैक्सीन के लिए अगर वो होंगी तो आपको बता दी जाएंगी। अदरवाइज एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Okay. Pankaj Chaudhary is asking, what about children's vaccination? या अभी तक जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो 18 ईयर्स के अप्रूव्ड हैं। अभी 12 to 18 ईयर्स का ट्रायल हमारे पास भी जीटीबी हॉस्पिटल में मैं भी कर रहा हूँ, 12 to 18 ईयर्स का चल रहा है। अब नेक्स्ट 12 to 18 ईयर्स की वैक्सीन आ जाएगी। बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में सडनली वैक्सीन नहीं इमीडिएटली, क्योंकि इन लोगों को ये बहुत एक प्रीशियस कम्युनिटी होती है, तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में लास्ट में चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। अभी 12 to 18 ईयर्स का चल रहा है ट्रायल। अभी ये वैक्सीन 12 to 18 ईयर्स में विद इन आई थिंक 3 मंथ्स में आ जानी चाहिए, 3 to 4 मंथ्स में। उसके बाद फिर छोटे बच्चों में चीजें शुरू होंगी, उससे छोटे में। Okay. So Yatharth Garg is asking, is vitamin C line is good for intake or there is any side effect? इट्स विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप एक गोली खा लो या 2 गोली खा लो, एक्सेस बॉडी में भी चला जाएगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो उसकी आप चिंता नहीं करें, विटामिन सी एक सेफ चीज है। विटामिन सी कोई ऐसा कुछ कोई नुकसान नहीं करेगा बॉडी को आपके। वो वाटर सॉल्युबल होता है, जो भी अगर आप एक्सेस थोड़ा सा ले भी लेंगे तो वो यूरिन में हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Ankur Singh is asking, are zinc tablets useful for immunity? या दे आर गुड फॉर इम्यूनिटी। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आप 14 to 20 डेज के लिए आप ले सकते हैं। 20 mg 50 mg ओडी दिन में एक बार आप ले सकते हैं। Okay. और सर जिनको नहीं हुआ है उन्हें लेनी चाहिए ये टैबलेट्स विटामिन सी और जिंक? नहीं, ऐसा तो कितने ले लोगे, कितना, उससे क्या हो जाएगा। उतने बेसिकली जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है विटामिन सी और जिंक का, बस उतना ही लेना चाहिए। वो हमारे फूड मटेरियल्स में फूड्स के थ्रू चला जाता है। जी जी. Tanushree is asking, my uncle's liver has been transplanted. Can he take vaccine? या लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से फर्दर कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज के बारे में। Khyati Arora is asking, there are cases where people are dying of COVID even after both doses of vaccination. Why is that? ख्याति, कोई भी चीज अगर वो 100% इफेक्टिव होगी तो वो डिजीज इरेडिकेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है, वो 70 to 80% इफेक्टिव होती है इन्फेक्शन के लिए, और 90-95% सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज प्रिवेंट करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। बट देयर आर स्टिल चांसेस कि हाँ 4 से 5% केसेस में वो हो सकता है, लेकिन आप 3-4% केसेस को नहीं देखें, आप ये देखें 95-96% का स्टिल वो हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर डिजीज से बचाती है।
Sir, we have answered all the questions. That is actually There's a one more question from Deep. If my Baba is 80 plus and he has little weakness, it will be right to get him vaccinated? Yeah, Deep, go ahead and get him vaccinated. No problem. okay. Thank you, sir. Thank you so much for Thank you, Dr. Kusha. patiently answering all the questions that were asked here. We had incredible response, and a lot of people, I think, must have been able to clear all their doubts that they have had about vaccination or immunity boosting vitamins and minerals. Thank you so much for coming here, and I'm sure that this session and this talk must have benefited the participants. Thank you all the participants for such a huge response. I would request all the participants to please switch on their videos for a group photo before we end the session. Before we break, I must thank and congratulate Dr. Manish. You know what kind of schedules he has. Besides attending to the hospital, now the national health emergency, he is also basically a teacher also. He is grooming so many students in his department. So salute to you, Dr. Saab. You are the ones who have been, at the forefront of this fight. And every day, even we are getting the news that GTV Hospital is adding many more beds also to fight this COVID. So from Samlal fraternity also, we extend you a very, very hearty salute to you, sir, for your benevolence, and instantly we agreed to spread this message. I hope all the participants will take it further. Then the effort will be appreciated. So that is the real intention of doing this. And particularly, कोई बच्चा है कि कह रहा था कि मैं ग्रामीण स्तर में क्या कर सकते हैं, बच्चे गांव में क्या क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या रिमर नहीं हो रहा है, अभी भी पंचायत इलेक्शन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ गांव में, तो आप ही लोग बच्चे, आप लोग सब चीज जानते हो, देखते हो, आप इसको आगे ले जाओ, आप ही कर सकते हो, बचा सकते हो. नहीं तो वहां पे ऑलरेडी वी आर गेटिंग सरप्राइजिंग न्यूज, लाइक ऑलरेडी हमें तो टीका लग चुके हैं. देयर इज हाउस टू हाउस. भाई जब ऐसे हाउस टू हाउस टीका हो ही नहीं सकता है, किस टाइप का इंजेक्शन हाउस टू हाउस दे रहे हैं पंचायत इलेक्शन के नाम से. तो ये सब चीजें बच्चे, आप ही लोग, ये सब जितना मिस इन्फॉर्मेशन है, इस टाइप का फ्रॉड, so all those things you can only stop. So then the system will improve. So with these words, once again, thank you, Dr. Saab. Namaskar. Thank you, Dr. सर फोटोग्राफ Ravi हुई and- नहीं अभी फोटोग्राफ. And thank you, Dr. Ravi, Dr. Nara, Dr. Kusha, for inviting me. It was a wonderful gesture, and students were quite wonderful. They had taken a lot of interest, and they had all asked their questions. And it was my pleasure to answer each and every one. There is no problem. It is our responsibility to dispel the facts, myths and facts about these vaccination. And unless until we do all this, our country cannot progress. And we have to take care. These are all, now see, if you see practically, it all started from Wuhan, and it was a Chinese virus. Now the Chinese has been, nobody uses the word Chinese virus, and now everybody uses it. Is an Indian variant, it is a South African variant, it is a UK variant. Now, because of the money power, muscle power, and the pressure on the WHO, they have almost eliminated the word Chinese from that place. So these are the enemy countries, and we have to take care of our country. We have to take care of our people. We have to take care of our society, and unnecessary fear-monger creators, they should not be allowed to propagate their facts or unnecessarily create confusion in the minds of our people. Thank you, sir. Very well said, actually. रुचिका, आपने ले लिया फोटो? नहीं, वीडियोस ही नहीं ऑन कर रहे लोग, खाली खाली सी लग रही है. बेटा जल्दी वीडियो ऑन करो, सर का टाइम अवेलेबल है. ओके सर, एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ. कोविशील्ड इंडिया में 4 to 8 वीक्स ले रहे हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 वीक्स बोल रहे हैं. सो शुड वी फॉलो 4 to 8 वीक्स ओनली? हाँ, 4 to 6 वीक्स के बाद आप लगवा सकते हैं आराम से. सर 8 वीक्स खत्म होने वाले हैं, बच्चे को कोविड हो गया तो 14 days आई डिडंट गो आउट. तो कोई बात नहीं, आप जब किसको, आपको अपने लिए लगवानी है कि हाँ जी सर.
मेरे तो को जब अपनी लगवा- कोविड अगर किसी को हो गया तो उसके 1 मंथ के बाद नेगेटिव टेस्ट होने के बाद आप लगवा सकते हो Oh, सेकेंड डोज। थैंक यू। Thank you. Okay. Namaskar. Doctor. थैंक यू सर। Namaskar. Namaskar. है ना? जग्गी ठीक हो? Can we log out now? यस सर। Yes, sir.